हेलो 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 दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएससीए में वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने शो पर शर्मा जी ऑन द माइक। वह चाय मीट्स चर्चा, कैंपस मीट्स क्यूबिकल्स, मार्क से लेके मीम तक, डेडलाइन से लेके ड्रीम तक, सबकी बातें होंगी, फुल ऑन मस्ती होगी। तो आज के इस एपिसोड में आई हैव माय डियरेस्ट फ्रेंड with whom I started my CMA journey. So it is a proud moment for me as well to introduce him to you, to tell him something about to everyone. Now that he is qualified, before that he has done industrial training in two Navaratna PSUs, not one where people struggle to get one. He have done industrial training in two of the PSUs. Other than that, now he is placed in business consulting, which is not a regular role or fought for CMA. But yes, he is doing that as well. So we'll get to know about his story, how many attempts he got, how he used to, what are the self doubts, thoughts he is having, and then how he tackled them, what was his preparation strategy, everything we are going to learn it. So, my friends, जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत करते हैं सीएमए जगदीश प्रसाद साहू। हाय जगदीश, वेलकम टू शर्मा जी ऑन द माइक। Hi, thank you so much for the nice introduction, Vedant. चलो, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, एक बार अपने बारे में सबको बता दो कि तुम कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या अभी कहाँ पे क्या प्लेस हो, थोड़ा सा उस बारे में। Yes, so hi everyone. Myself CMA Jagdish Prasad Sahu. Actually, I am coming from Koraput, Damanjodi. It's in Odisha, and I'm qualified CMA final in last June attempt, June 25, and currently I am working as a senior associate in Arithra Business Consulting Limited. It's a like private firm which is dealing in like financial planning and analysis, financial advisory, virtual CFO consultancy, and moreover process improvements for the startup business and for the mid market companies. So, like Jagdish, how did you came into CMA? Like everyone was going to CA or MBA or something like that. Why did you choose CMA? How you came into it? So Vedant, first of all, I didn't knew about CMA. Basically, I knows about like chartered accountancy course because my father is working in a Navaratna PSU that is called Nalco. So he once upon a time he told me that chartered accountants are there for the auditor's role, and they will come to the company and they will visit the company and they do the audits of the financials of the company. They get so much of respects in the society. So व्हाट आई थॉट इज लाइक, हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो मैं सुना था बट कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में तो मैं नहीं सुना था। व्हेन आई केम इन टू द ट्वेल्थ, जब हमारा ट्वेल्थ चल रहा था तो तभी एक सर थे, तो उन्होंने गाइड किए थे कि लाइक देर आर थ्री प्रोफेशनल कोर्सेज इज देयर इन कॉमर्स। सो बैकग्राउंड में आप कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। सो ही सजेस्टेड मी टू डू लाइक कॉस्ट अकाउंटेंसी कोर्स। तो उसके बाद ही मैंने एक्चुअली जाना कि लाइक अबाउट व्हाट इज द सीएमए कोर्स एंड ऑल। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका फाउंडेशन एंड इंटर दोनों एक बार में निकला था। इवन आपका सीएमए फाइनल का ग्रुप 4 भी एक बार में निकला था, राइट? यस। Okay, so before coming into your attempts and final ka journey, I would like to know ki, no, did you got your industrial training in the very first go, or there was any struggle in finding that, and how did you end up doing two different, PSUs, two different industrial trainees? How you ended up there? वो journey के बारे में थोड़ा सा बताइए। Yes. So basically, what happened after qualifying CMA intermediate, I just thought to like pursue CA intermediate. सो मैंने एक अटेम्प्ट दिया था उसके बारे में बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। देन मीनवाइल मैंने लिंक्डइन में आई गेस गो थ्रू किया था। आई जस्ट सॉ द एनएलसी इंडिया लिमिटेड का एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर निकला था। देन आई वेंट देयर टू देयर वेबसाइट एंड जस्ट अप्लाइड just a normal basis because they were recruiting like on the basis of merit. सो मेरा इंटर में मार्क्स अच्छा था, तो आई थॉट कि लाइक इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई कैन गो थ्रू इट। एंड मेरे को पहले से भी मन था कि लाइक टू डू द इंटर्नशिप और लाइक आर्टिकलशिप इन Navaratna PSU or like PSU, any PSU is fine. So I thought that let's do it.
तो मैंने बस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था। देन लेटर ऑन 2022 फेब के एंड में इसका रिजल्ट निकला। दे शॉर्ट लिस्टेड मी, एनएलसी इंडिया लिमिटेड शॉर्ट लिस्टेड मी फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फाइनेंस कैंडिडेट लिस्ट में मेरा नाम था। तो आई जस्ट थॉट कि लाइक इट इज़ द लाइक इंडिकेशन ऑफ द गॉड, सो लेट्स जस्ट डू इट। ओके, बट देयर वाज अ गैप कि तो लाइक आप इज एनएलसी इज द ओनली वन, और या फिर आपने और बहुत जगह पे अप्लाई किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? बिकॉज like what why I want to ask is कि a lot of people in CMA after completing CMA inter they feel very disheartened कि नहीं हमें आर्टिकलशिप नहीं मिल रही, इंटर्नशिप नहीं मिल रही, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिल रहा। So I want you to share your struggle of that moment as well. तो मैंने बहुत लाइक 5-6 सीए फर्म्स को मैं खुद जाके चल के चेन्नई में मैंने रिक्वेस्ट किया था टू डू द आर्टिकलशिप। तो स्ट्रगल तो है, क्वाइट फ्यू ऑफ देम वेर लाइक इंटरेस्टेड फॉर टेकिंग इट, बट द स्टाइपेंड वाज वेरी लो एंड द वर्क एक्सपोजर व्हाट आई was interested to do in a PSU, that and all is not covered in CFM obviously। तो कोइंसिडेंटली वो पीएसयू में हो गया, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया। तो आई जस्ट वेंट देयर, आई जस्ट जॉइन एनएलसी इंडिया No. लिमिटेड। Okay, then for NLC से how you switch to another PSU? It's like a coincidence you can say, and like it's just a like fate। So what happened is I have completed 8 months in NLC India Limited। सो 8 महीने के बाद क्या हुआ, कोइंसिडेंटली मैं एक बार ऐसे रेस्टोरेंट गया था रात को खाने के लिए, वहाँ पे नेईवेली में, आई वॉज देयर इन नेईवेली तमिलनाडु। तो वहाँ पे मैं जस्ट नोटिफिकेशन सर्च किया, लिंक्डइन में एक बस छोटा सा नोटिफिकेशन आया था कि लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए एनएमडीसी लिमिटेड, उसका रायपुर यूनिट में। तो जस्ट फॉर ए रेफरेंस पर्पस मैंने वेदांत को भी बोला था कि जस्ट हैव ए कन्वर्सेशन इफ समथिंग इज पॉसिबल। तो उसके बाद फिर जो वहाँ के जो एचओडी फाइनेंस है रायपुर यूनिट का, एनएमडीसी लिमिटेड का, मिस्टर महेश कुमार हेड़ा, तो उन्होंने मेरे को कॉल किए थे आफ्टर ए फ्यू वीक्स, लाइक 1-2 हफ्ते के बाद वो मेरे को खुद कॉल किए थे। दे आस्क्ड मी लाइक, थोड़ा वर्बल हमारा कम्युनिकेशन हुआ एंड लाइक थोड़ा बहुत वर्क के लिए रिलेटेड वो मेरे को पूछे कि एसएपी का, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन एसएपी एनएलसी इंडिया लिमिटेड में। तो they are also in the SAP S4 HANA version, they are using it in NMDC Limited। तो उनको चाहिए था कि लाइक एक्सपीरियंस्ड बंदा जिसको SAP पता हो एंड थोड़ा बहुत अपना वर्क के रिलेटेड उनको एक्सपीरियंस हो, तो उनको वैसा बंदा चाहिए था। तो उन्होंने मेरे को नॉर्मल ऐसे MIR जो सिस्टम रहता है SAP में, एक दो क्वेश्चंस पूछे थे एंड परचेज ऑर्डर कैसे चेक करना है एंड टेंडर प्रोसेस कैसा रहता है एंड नॉर्मल एंट्रीज कैसे करते हैं एसएपी में। देन ही सेड दैट आप इतना चीज़ कर लोगे ना, तो फिर आप आ जाओ वहाँ से, रेजिग्नेशन दे दो एंड आप आ जाओ, मैं तो खुश हूँ, तो आप आ सकते हो, मैं आपको ज्वाइन करवा लूँगा। देन आई वॉज वेरी फ्यू, लाइक मैं बहुत डर गया था वहाँ पे कि लाइक ठीक है मैं तो ज्वाइन के लिए तो चला जाऊँगा, बट वंस इफ आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी तो इट वोंट कम बैक। तो मैंने जैसे ये प्रपोजल दिया मेरे एचओडी को लाइक एनएलसी इंडिया लिमिटेड में, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिए कि बोले कि ये बहुत जैसे कि फ्रॉड रहता है एंड यू डोंट नो, लाइक यू मस्ट गेट सम ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर। तो फिर मैंने उनको फिर अप्रोच किया जो एचओडी फाइनेंस है रायपुर यूनिट का, एनएमडीसी लिमिटेड का। तो उन्होंने फिर मेरे को इंटरव्यू कॉल के लिए एक मेल भेजे ऑफिशियल आईडी से। देन आई वाज श्योर कि लाइक हाँ, इट इज काइंड ऑफ ए सिग्नल आपको मिल जाता है कि लाइक दे आर इंटरेस्टेड टू टेक यू एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आप जा सकते हो। देन आई टुक द लाइक व्हाट यू कैन से बेट। तो मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया। 2 दिन मेरे को वहाँ के मेरे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर थे एंड जो फाइनेंस के जो हेड थे, उन्होंने बहुत ट्राई किए कन्विंस करने के लिए कि यू कैन स्टे हियर एंड यू जस्ट कंप्लीट योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड देन गिव योर फाइनल एग्जामिनेशन। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द वर्क एक्सपोजर एंड मैं बस देख रहा था कि लाइक मेरे को अच्छे से काम सीखना है एंड अच्छे से एक्सपीरियंस लेना है, वर्क एक्सपोजर जैसा मेरा तगड़ा रहे। So it was the basic idea behind like joining, like switching from the NLC India Limited to NMDC Limited। फिर later on मेरे को पता चला कि like
It was a roller coaster journey. Like in NLC India Limited, I was like in a school, like जैसे बच्चे स्कूल में रहते हैं ना, देन कम टू द ग्रेजुएशन कॉलेज वाला फेज आता है, तो एनएमडीसी वाज लाइक ए कॉलेज वाला फेज मेरा, पूरा प्रॉपर डिग्री वाला जैसे रहता है, मतलब मजे भी किया हूँ एंड काम भी सीखा हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऑल टुगेदर मेरे पर्सनल लाइफ से लेके मेरे फाइनेंशियल लाइफ एंड मेरे सोशल लाइफ बहुत सपोर्ट किए हैं वहाँ के जितने भी थे, फॉर द गॉड्स ग्रेस। लाइक मेरे को आज तक जितने भी मेरे फाइनेंस ऑफिसर्स मिले, रिपोर्टिंग ऑफिसर्स मिले, सीनियर ऑफिसर्स मिले, जिनके साथ मैं काम किया हूँ, दे आर वेरी गुड पर्सन्स इन रियल लाइफ। वो उन लोगों ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया मेरे सीएमए जर्नी में। सो इट वाज काइंड ऑफ रोलर कोस्टर जर्नी, बट इट वाज वेरी गुड एंड इट वाज फन। Great, great, great. Thank you so much, Jagdish, for sharing in this detail. Now, Jagdish, would you like to share कि how many attempts you took to complete your group 3? एंड फिर जब आपका अटेम्प्ट चल रहा था, तो फिर एक बार हुआ, दो बार हुआ, फिर आपके माइंड में क्या, मतलब क्या चल रहा था, आप खुद को कैसे संभाल रहे थे, क्या थॉट्स माइंड में आ रहे थे, थोड़ा उस बारे में बताएंगे? सो बेसिकली मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ ही मैं फाइनल का अटेम्प्ट्स दे रहा था। आई नेवर टुक लीव फॉर माई फाइनल एग्जाम ऑल्सो, लाइक लास्ट के जो एग्जाम से पहले जो 5-10 दिन रहता है उतना ही मैं लीव लिया था, बिकॉज इट वॉज आई फेल्ट लाइक आई शुड गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू माई फैमिली, सो इट इज नीडेड टू डू द जॉब, नॉट टू लाइक डू लाइक टेक द लीव एंड जस्ट स्टडी। सो मैं सोचा, बिकॉज मेरा ग्रुप 4 एक्चुअली क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड विद द आर्टिकलशिप ओनली इट गॉट क्लियर्ड। एंड मैंने मेहनत भी किया था, सेम मेहनत सीएमए फाइनल ग्रुप 3 में भी किया था, बट देर वॉज सम मिस्टेक्स आई फेल्ट कि वो चीज़ नहीं हुआ था, मतलब चीज़ें को वजह से ही मतलब नहीं हो पाया क्लियर। जैसे कि बार बार प्रैक्टिस करना, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि सीएमए फाइनल में ग्रुप 3 का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, एंड मोस्टली पीपल फेल लाइक फेल इन द एग्जाम बिकॉज ऑफ ग्रुप 3 ओनली। बट ग्रुप 3 में ऑल 4 सब्जेक्ट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी क्रूसियल फॉर द प्रोफेशनल जर्नी ऑल्सो। तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था तभी, बिकॉज वर्क प्रेशर भी था, मतलब काम भी कर रहा था, देन अगेन आई हैव टू कम बैक एंड स्टडी। तो मेरे को 3 अटेम्प्ट लगे थे ग्रुप 3 में। सो पहला जब अटेम्प्ट लगा था इट वाज वेरी नॉर्मल, लाइक आई आई फेल्ट कि मैं इतना ज़्यादा कोशिश नहीं किया था, और ऐसे मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एंड क्या बोले, मतलब कॉन्फिडेंस में मैंने नहीं दिया था। आई जस्ट थॉट कि लाइक ग्रुप 4 भी निकल गया तो फिर ग्रुप 3 में भी निकल जाएगा। देन फर्स्ट फेलियर वाज दैट। देन सेकंड टाइम क्या हुआ, सेकंड टाइम आल्सो सेम सिचुएशन, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू प्रैक्टिस द सम्स। ग्रुप 3 में ना मेन चीज ये रहता है कि वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल द प्रॉब्लमेटिक जितने भी जो सब्जेक्ट्स है, एसएफएम हो गया, डीटी हो गया, कॉस्टिंग हो गया, वन बाय वन क्वेश्चंस वी हैव टू प्रैक्टिस। जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू राइट इन द एग्जाम एक्चुअली। कुछ भी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जाएगा तो दैट ऑल्सो यू कैन टैकल इन दैट केस। तो मैंने जैसे सेकंड वाले अटेम्प्ट में भी सेम सिचुएशन था, एंड मार्क्स भी सेम ही आया था, लाइक 150-160 अराउंड ही आया था। एंड बस मेरा कॉस्टिंग ही अच्छा चल रहा था, तो कॉस्टिंग में 50+ ही आया था दोनों बार में, बाकी सब में फेल। तो जैसे थर्ड अटेम्प्ट हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने एक्चुअली थोड़ा बहुत गाइडेंस वीडियोस भी मैं देखा, एंड मीनवाइल ऑब्वियसली यू फील अनकंफर्टेबल, फिर सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है लाइफ में कि लाइक क्या चल रहा है, एक ही ग्रुप में फंस गए हैं। तो सो आई वांट टू टेल टू एवरीवन हु इज स्ट्रगलिंग फॉर क्लियरिंग द ग्रुप 3, आप बस कुछ मत करो। वन थिंग यू हैव टू डू इज मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू डू ऑल 3 सब्जेक्ट्स। लॉ तो बेसिकली थियोरिटिकल है, तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू मग अप द प्रोविजंस एंड यू हैव टू राइट इट डाउन, उसको थोड़ा बस राइटिंग प्रैक्टिस करना है। Otherwise than SFM, DT and costing, you have to be proper, like thoroughly conceptually clarified कि आप जैसा भी क्वेश्चन आए तो आप टैकल कर सकते हो इन द एग्जाम हॉल। तो ये चीज़ मैंने ग्रुप 3 में किया। मैंने एक्चुअली लीव लिया 1 महीने, देन घर गया एंड वहाँ पे पूरा बैठ के
वन बाय वन एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया एंड प्रैक्टिस किया, उसके वजह से फिर ग्रुप 3 क्लियर हो गया एंड आई गॉट द एग्जाम्सन इन कॉस्टिंग ऑल्सो। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच जगदीश। तो फिर आप बताइए अभी कि नाउ दैट यू हैव सीन फेलियर एज वेल एज सक्सेस, हाउ डू यू योरसेल्फ कीप मोटिवेटेड? खुद को कैसे संभालते थे कि आपको मतलब जैसे पता है कि आपके सेकंड अटेम्प्ट में मीरा और अश्विन भाई दोनों का हुए, लाइक फॉर दोज हु नो अश्विन भाई, मी एंड जगदीश आर इन दिस जर्नी टुगेदर, लाइक जो तीन जन का कोर ग्रुप होता है ना, दिस वाज आवर ग्रुप। तो उसमें क्या हुआ कि दिसंबर 24 में हम तीनों ने साथ में दिया था, बट हम दोनों का हो गया, इसका रह गया था। तो उस टाइम पे जो फिर जितना मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट ब्रेक होता है, जो पेन होता है, फिर वहां पे फिर वापस आप खड़े कैसे हुए? क्योंकि सबके साथ ये चीज होता है कि दोस्त का निकल जाता है, मेरा रुक जाता है। तो फिर वहां पे आपने खुद को कैसे समझाया, खुद को कैसे फिर मतलब अगेन कि नहीं, आई विल नॉट क्विट, आई विल अगेन अपीयर फॉर एग्जाम्स, वो चीज को फिर आपने कैसे संभाला? यस, ऑब्वियसली आई फेल्ट वेरी बैड कि अपने दोस्त का हो जाता है एंड खुद का नहीं होता है, तो दुख लगता है क्योंकि यू केम बैक एज ए बैक बेंचर, लाइक बैक स्टेप आ जाते हो एंड अपने दोस्त लोग सब आगे चले जाते हैं, तो फिर बट द वन थिंग वाज देयर इन आवर ग्रुप इज लाइक द यूनिटी। You both of them, like Ashwin bhai and you, both of them helped me too much, like बहुत ही मतलब obviously we are in like a extended family kind of thing in between us, but चीज़ें जितने मतलब ये दोनों ने मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट किए थे थ्रू आउट द जर्नी। जो नेक्स्ट जो 6 मंथ्स का जो फेज था उसमें से 3 महीना बिफोर गोइंग टू माई होम, तो इन लोगों ने बहुत मेरे को हेल्प किए थे। ऑब्वियसली माई मदर वॉज देयर कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग मी एंड सब मतलब बहुत मोटिवेट करते थे, मेरी मम्मी एंड मेरी पापा, जो मेरे जो पापा जो है, तो दोनों मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं, लाइक तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किए थे एंड उन्होंने मेरे को बोले थे कि लाइक सी जगदीश, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, द राइट टाइम विल कम, सो यू डोंट हैव टू बी वरी। हमारा दिन था बट तुम्हारा भी दिन आएगा एंड यू जस्ट हैव टू बी कीप गोइंग। So it was the self belief I what I felt after talking to those people in my life. Because of them only I got like self motivated. हाँ, it's okay. Like because of them, like they said कि हाँ आप मतलब मैं कर सकता हूँ. So like that. So I got the opportunity and I take it as a learning for both the attempts. Then uh, I have worked hard. उसके वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ। Okay, now Jagdish, now that you have completed your final and you had good marks and good experience, but campus placements में मतलब बहुत बुरा हाल था. So did you received any shortlisting or it was almost nil shortlistings for you? मेरे को मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ऑन कैंपस में मेरा एक एक भी जगह पे शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ था। बिफोर गोइंग टू कैंपस ऑलरेडी आई हैड लाइक 3-4 कंपनीज का ऑफर लेटर आई हैड because of this RSM was there and Accenture was there and for PwC was there and Tata Consumers also there. uh, मतलब 3-4 कंपनी का मेरे को पहले से था एंड ऑब्वियसली एनएमडीसी इज टेकिंग एज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में वो लेते हैं अभी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव रोल में, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दोज काइंड ऑफ रोल्स। आई वाज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड फॉर द PSU बट इट डिडंट हैपन एंड कोलकाता कैंपस मैंने चूज़ किया था, तो उसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया था, बिकॉज ऑन कैंपस में NLC इंडिया लिमिटेड वॉज द ओनली वन PSU केम इन द पिक्चर, तो उनका जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया था उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया बिकॉज आई गॉट लेस मार्क्स इन फाइनल। जो दूसरे वाले जो बच्चे थे उनका ज़्यादा मार्क्स था। बेसिकली ऑन कैंपस में मेरे मेरे को एक भी कंपनी ने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया था, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आफ्टर दैट आई गॉट लाइक द अरिथ्रा पार्ट हाउ इट केम, आई जस्ट वांटेड टू नो टेल यू इज लाइक मेरा एक रूममेट था NLC इंडिया लिमिटेड में, मैं जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा था, सो आई वाज विथ अभिजीत, तो वो मेरा एक्चुअली रूममेट था NLC इंडिया लिमिटेड में जब हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ही ओनली रेफर्ड टू मी फॉर द करेंटली वेयर आई एम वर्किंग। तो उनके जो फाउंडर है एंड जो डायरेक्टर है, तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू लिए थे एंड इट वाज सक्सेसफुल।
Thank you, Jagdish, for sharing in this detail. Like this detail is something a lot of people want to know. So thank you, Jagdish, for sharing that. Now that Jagdish has shared his journey, I would like to tell the learnings I had from this entire episode. See, basically, if I go through his articleship journey, he didn't stop at NLC. A lot of people will stop at NLC because, now that I have one industrial training in my bag, I don't need anything else. But no, he didn't stop. He looked for more work exposure because industrial training, internship, articleship are meant for that. And in NMDC, he took responsibility. He was telling it. After that, he realized his mistake during his final attempts. I am not practicing. I need more practice. That is self realization. That is more important because you need to know where you are, making the mistake. After that, he was self motivated. He was trying to do things. See, he himself told that earlier he didn't used to take leave, but then he took the leave. He rectified his mistakes, and then also after completing his final, he, as he said, the offers he was receiving, it was not up to his expectation, so he was referring his friends, right? So this is what, friends, you also have to do. You have, if you are not joining somewhere, refer your friends. They will be grateful to you. And one thing we would like to tell from our end as friends, that friends, if your friend is getting stuck, you have to be the one motivating him or her. You should not leave them behind. You should be their support throughout the period. That is what you guys need to do. So again, thank you so much, Jagdish, for sharing your entire journey with us. Like, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, like on this formal note. Okay, it is little bit weird, but it is great to have you, Jagdish. Thank you again. Thank you so much, Vedan. Thank you. So, friends, this was CMA Jagdish Prasad Sahu, a journey filled of success in internship, then failures during final, then again, a roller coaster ride during his placements, and then again now he's placed somewhere where, which is not a common field. But throughout this journey, he never gave up. He rectified his mistakes, and that is why today he is successful. So, friends, I hope you have learned a lot of things. And if you need any kind of placement assistance, like in your, preparing for your interviews or improving your communication or anything, you know where to contact the placement mantra. Our number is visible on the screen. To register, the links are in the description. You just need to do is register and, witness that TPM magic. With this, आपका अपना शर्मा जी का बेटा CSCM वेदांत शर्मा signing off.